سابق آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا پشاور کا دورہ۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتح خوانی کی ہے۔ آرمی چیف نے خیبر پختونخوا کے نئے ضم شدہ اضلاع کے قبائلی عمائدین کے ساتھ ساتھ زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے معززین سے ملاقات کی ہے۔ آرمی چیف نے پاکستان کے بہادر قبائلیوں کی عظیم قربانیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے۔ دہشت گردی کی لعنت کو شکست دینے میں سیکورٹی فورسز کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہونے کے ان کے ناقابل یقین عزم کو بھی سراہا ہے۔ اہم خبر آپ کو دی جا رہی ہے آرمی چیف کے دورے کے حوالے سے۔ آپ کو ایک بار پھر سے ہم بتائیں گے کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے پشاور کا دورہ کیا ہے۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتح خوانی کی ہے۔ آرمی چیف نے خیبر پختونخوا کے نئے ضم شدہ اضلاع کے قبائلی عمائدین کے ساتھ زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے معززین سے ملاقات کی ہے۔ آرمی چیف نے پاکستان کے بہادر قبائلیوں کی عظیم قربانیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا اور دہشت گردی کی لعنت کو شکست دینے میں سیکورٹی فورسز کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہونے کے ان کے ناقابل یقین عزم کو بھی انہوں نے اپریشیٹ کیا، سراہا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر جن کی جانب سے پشاور کا دورہ کیا گیا، ISPR کے مطابق آرمی چیف نے وہاں پر موجود یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی، فاتح خوانی کی اور آرمی چیف نے خیبر پختونخوا کے نئے ضم شدہ اضلاع کے جو قبائلی عمائدین تھے ان کے ساتھ ساتھ زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے معززین سے بھی ملاقات کی۔ آرمی چیف نے پاکستان کے بہادر قبائلیوں کی عظیم قربانیوں کو زبردست خراج تحسین بھی پیش کیا۔ جاوید بلوچ سے مزید جانتے ہیں۔ جی جاوید بلوچ۔ دیکھیں، آج بڑا اہم دورہ تھا آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا KPK کا، جہاں پر انہوں نے جرگہ سے خطاب کیا ہے، گرینڈ جرگہ صاحب سے خطاب کیا، جس میں آرمی چیف کا یہ کہنا ہے کہ فوج اور سیکورٹی کے تمام ادارے پاکستان کی عوام ایک ہیں، جو لوگ امن کو برباد کرنا چاہتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ اس موقع پر پاکستانی فوج شہداء کی فوج ہے، یہ آرمی چیف کا کہنا تھا، جس کا نعرہ ہے ایمان تقویٰ اور جہاد فی سبیل اللہ، ہم آپ میں سے ہیں اور آپ ہم میں سے ہیں، یہ آرمی چیف کا کہنا تھا۔ اس جگہ میں جو قبائلی علاقہ جات کے تمام جو ماہرین تھے وہ شریک تھے، مختلف جو ہے قبائلی کے لوگ اس میں شریک تھے، جس میں آرمی چیف نے کہا کہ اگر مذاکرات ہوئے تو صرف پاکستان اور عبوری حکومت کے مابین ہوں گے۔ یہ آرمی چیف نے افغان حکومت کو جو ہے وہ اس وقت سے بات کی، جس میں ایک اور بڑی اہم بات جو ہے وہ آرمی چیف کی طرف سے کہی گئی، جس میں انہوں نے کہا کہ کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ایک بڑی انہوں نے بات کی افغان حکومت کو جو ہے وہ مخاطب کرتے ہوئے۔ یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان کی آئین میں ہے، یہ خوارج کون سی شریعت لانا چاہتے ہیں، یہ آرمی چیف کی طرف سے پکارا گیا۔ میں اور میری بہادر فوج دہشت گردی کے خلاف جنگ میں خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے، یہ آرمی چیف نے بڑا واضح کر دیا اس اپنے پیغام میں اور خطاب میں، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ دہشت گردوں کے پاس ریاست کے سامنے سر تسلیم کرنے کے ہم اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں اور کامیابی ہماری ہی ہو۔ موقع پر جو ہے وہ شہداء کے لیے فاتح خوانی بھی کی گئی اور جو پولیس کے شہداء ہیں انہیں خراج کی پیش کیا گیا۔ اچھا جاوید بلوچ، یہ بھی بتائیے گا کہ کون کون سے یادگار شہداء پر وہ گئے اور مزید بھی کچھ ان کی اہم ملاقاتیں جو ہیں وہ شیڈیول ہیں؟ دیکھیں، آج بڑا اسپیشل دورہ تھا آرمی چیف کا پشاور کا، جس میں آج جو سب سے بڑی جو ایک تقریب تھی وہ جرگہ سے خطاب تھا آرمی چیف کا، جس میں جو ہے وہ مختلف حکام شریک ہوئے، مختلف قبائلی علاقوں کے ماہرین بھی اس میں شریک تھے، جس میں جو آرمی چیف نے آج خطاب کیا ہے وہ ایک پورا ایک پالیسی اور جو فوج کی کاوشیں ہیں یا فوج کی جو ایک آپ چلیں کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری ہے اس پر جو کام کیا جا رہا ہے اس کو متعلق انہوں نے واضح کیا، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ فوج اور سیکورٹی کے تمام ادارے پاکستان کی عوام کے ساتھ مل کر اس دہشت گردی کا خاتمہ کریں گے اور جو بھی اس راستے میں آئے گا اسے ہٹا دیا جائے گا۔ اس موقع پر جو ہے وہ آرمی چیف نے جو شہداء تھے ان کو خراج عقیدت پیش کیا اور جو فاٹا کے ضم شدہ اضلاع ہیں وہاں پر ہونے والے ترقیاتی کاموں کے حوالے سے بھی بات کی اور جو ترقیاتی منصوبے ہیں ان کو مکمل کرنے کا بھی عزم کا اظہار کیا اور جو ان کی
जो ब्यूरो चीफ न्यूज़ इस्लामाबाद जावेद बलोच हमारे साथ हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पेशावर का दौरा किया है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातह खानी भी की। आर्मी चीफ ने खैबर पख्तूनख्वा के नए जमशुदा अजला के कबायली अमायदीन के साथ साथ ज़िंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले मुअज़्ज़िज़ीन से मुलाकात की। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के बहादुर कबायलियों की अजीम कुर्बानियों को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। दहशतगर्दी की लानत को शिकस्त देने में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ कंधे से कंधा मिला खड़े होने के इनके नाकाबिल यकीन अज़्म को भी सराहा। जावेद बलोच, आर्मी चीफ ने जो फाटा के ज़मशुदा अजला थे, कबायली माहिदीन के साथ साथ उनके जो मुअज़्ज़िज़ीन हैं और तमाम शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं, उनसे उन्होंने मुलाकात की और उनके हौसले को भी सराहा। उन्होंने कहा कि किसी भी गिरोह या जत्थे से बात नहीं की जाएगी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खून के आखिरी कतरे तक हम लड़ेंगे। आर्मी चीफ ने जब वहाँ पर मौजूद अमायदीन से मुलाकात की, जावेद ये भी बताइएगा हमें, खैबर पख्तूनख्वा के नए जमशुदा अजला के कबायली अमायदीन के साथ जो उनकी मुलाकात है, इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? देखें, जो कबायली इजला जो दम किए गए थे खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ पर जो तरक्याती काम करवाए जा रहे हैं, जो तरक्याती मनसूबे पाक फौज की तरफ से, KPK गवर्नमेंट की तरफ से, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जो शुरू की गई हैं वहाँ की तरक्की के हवाले से, उस हवाले से आर्मी चीफ ने उनसे बातचीत की और उनसे मुलाकातें की और जो तरक्याती मनसूबे जारी हैं उसके मुतालिक भी आगाह किया। जो है वो कबायली मुशारान से मुलाकात में उन्होंने ये कहा है कि फाटा की तरक्की के लिए, फाटा की आवाम के मसाइल के हल के लिए जो है वो कोई कसर उठानी रखी जाएगी और यहाँ पर अमन के क़याम के लिए, अमन कायम करने के लिए जो है वो पाक फौज और सिक्योरिटी इदारे अपनी जानों के नजराने तक पेश कर रहे हैं। इस मौके पर जो खिताब है आर्मी चीफ का, उसमें उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें आज वाज़ेह की हैं और जो दहशतगर्द अनासर हैं उन पर भी ये वाज़ेह कर दिया है कि दहशतगर्दों के। जावेद बलोच, आप हमारे साथ रहेगा। मारिया सुल्तान साहिबा दिफाई तजियाकार हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया मारिया आपके वक्त के लिए। किस तरह से देख रहे हैं आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के पेशावर के इस दौरे को, अभी रिसेंटली जो उन्होंने किया? मेरे ख्याल से ये अपनी नौयत का बहुत अहम दौरा है, क्योंकि ये इस बात की वजाहत करता है कि पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी अफराद, बिलखसूस पाकिस्तानी कबाइल दहशतगर्दी की जंग में एक तरफ खड़े हैं। इसलिए कि ये पैगाम आपने दिया है उन तमाम अनासर को जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करना चाहते हैं, बिलखसूस वो तमाम पड़ोसी ममालिक जो समझते हैं कि पाकिस्तान की सरजमीन में दोबारा दहशतगर्दी की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान ना सिर्फ इसका भरपूर जवाब देगा, लेकिन पाकिस्तान वो तमाम चीज़ें जानता भी है और उसकी बरअक्स जितनी भी चैलेंजेस हैं उनको डील करने के लिए तैयार है। अच्छा, मारिया सुल्तान ये भी हमें बताइएगा, उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के नए जो जमशुदा अजला है इनके कबायली माहिदीन से भी आर्मी चीफ ने मुलाकात की है। यकीनन ये बड़ा अच्छा एक इक़दाम है, इस पर क्या कमेंट करेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ा जो हदफ रहा है दहशतगर्दों का वो यही है कि आपके कबाइल को निशाना बनाया जाए, उनके अंदर ये तासुर पैदा किया जाए कि शायद पाकिस्तानी अफवाज और उनके दरमियान कोई फ़र्क है। तो उनसे मिलने से ये बात वाज़ेह है कि पाकिस्तानी रियासत, पाकिस्तानी रियासती इदारे और बिलखसूस पाकिस्तानी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट न सिर्फ जो है ज़मीनी हक़ाइक़ से वाकिफ़ है, लेकिन इसके साथ साथ वहाँ खुशहाली चाहती है और इन इलाकों में दहशतगर्दी से पाक चाहती है और इनके दरमियान किसी किस्म का कोई खलफशार मौजूद है। मुल्क दुश्मन जो क़ुव्वतें थी मारिया, जो कि तासुब की जो हवा है उसको फ़रोग़ दे रही थी और तासुब की एक हवा जो है मुल्क की अगर मौजूदा इस वक्त सियासी सूरत हाल को भी मद्देनज़र रखें उस पर फैलाने की कोशिश की जा रही थी, यकीनन उसको एक वाज़ेह मैसेज भी दिया गया है कि हम सब एक ही प्लेटफॉर्म पे। जी देखिए, मैसेज यही है कि ये हमारा मुल्क है, हमने दहशतगर्दी की बड़ी लंबी जंग लड़ी है और हम आगे भी लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब ये मुमकिन नहीं है कि हमारे साथ वो सलूक किया जाए जो शायद 2001 में किया गया था, जहाँ मुख्तलिफ किस्म के तासुर, मुख्तलिफ किस्म की जो है खलफशार पैदा किया गया अवाम के दरमियान, अफवाज के दरमियान और अहदाफ के दरमियान। हम अपने अहदाफ को भी समझते हैं, हम दुश्मन की चाल को भी समझते हैं और हम उसको जवाब देने के लिए भी तैयार हैं। ठीक है मारिया, आप हमारे साथ ही रहेगा। इस वक्त ब्यूरो चीफ न्यूज़ इस्लामाबाद जावेद बलोच भी हमारे साथ हैं। जावेद साहब, यकीनन ये जो मुल्क दुश्मन अनासिर हैं, जो क़ुव्वतें हैं जो कि तासुब की जो हवा इसको फ़रोग़ दे रही थी, इनको एक वाज़ेह मैसेज दिया गया आर्मी चीफ की जानिब से, इस पर क्या कमेंट करेंगे आप? देखें, जो आर्मी चीफ का खिताब है वो बड़ा वाज़ेह है। अच्छा, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि
फौज और सिक्योरिटी के तमाम इदारे और पाकिस्तान की अवाम एक हैं। जी। जो लोग अमन को तबाह करना चाहते हैं वो हम में से नहीं है। जबकि उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तानी फौज शोहदा की फौज है, जिसका नारा है ईमान, तकवा और जिहाद फी सबिलिल्लाह। हम आप में से हैं और हम जो आप अवाम है वो हम में से है, यानी फौज में से है। तो ये वो चीजें हैं जो आर्मी चीफ से कहेंगी। और फिर तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, उस पर भी उन्होंने बात की। और उनका ये कहना था कि अगर अफगान हुकूमत को मुखातब करते हुए उनका ये कहना था कि क्या एहसान का बदला एहसान के अलावा कुछ और भी हो सकता है। यानी कि पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान की सपोर्ट की, मुस्तहकम और उसे वहाँ पर इस्तेकाम लाने के लिए पाकिस्तान ने हमेशा अपना किरदार अदा किया, पाक फौज ने अपना किरदार अदा किया। बिल्कुल। इसी पे मारिया सुल्तान साहिबा की मैं राय भी ले लूंगी। मारिया, आज आर्मी चीफ ने एक और वाज़े मैसेज दिया है। उन्होंने कहा है कि जितने भी अफगान मुहाजिरीन हैं, क्योंकि एक बड़ी तादाद जो है खैबर पख्तूनख्वा में पाई जाती है अफगान मुहाजिरीन की, उन्होंने कहा है कि अफगान मुहाजिरीन को पाकिस्तान के जो कवानीन है उसके अकॉर्डिंग ही पाकिस्तान में रहना होगा। इस पर क्या कहेंगी? देखिए, जाहिर है जब भी आप किसी दूसरे मुल्क में जाके ठहरते हैं तो ये मुमकिन नहीं है कि आप वहाँ जो है दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलविस हो या वहाँ आप इस किस्म की कार्रवाई करें जहाँ से उस मुल्क का अमन और अमान जो है, सलामती जो है खतरे में पड़े। तो ये मैसेज ना सिर्फ अफगान महाजरीन बल्कि उन तमाम लोगों के लिए जो इस वक्त आपके मुल्क में दहशतगर्दी की किसी भी किस्म की कोशिश करते हैं। जाहिर है जो पाकिस्तान के कवानीन है उसके मुताबिक इनको यहाँ रहना होगा अगर वो पाकिस्तान में सुकूनत चाहते हैं, और अगर नहीं चाहते हैं तो फिर ये वापस जा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर इस वक्त अफगानिस्तान में बानिस्बत पहले के अमन है और उनके पास वहाँ एक अफगान हुकूमत है जो अफगान अपनी मर्जी से लेके आए हैं। तो ज़ाहिर है इसका हल भी, मुस्तकिल हल भी उनकी वापसी के साथ मुंसलिक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मारिया सुल्तान साहिबा दिफाई तजज़ियाकार हमारे साथ नहीं। जावेद बलोच हमारे साथ हैं, ब्यूरो चीफ न्यूज़ इस्लामाबाद। जावेद साहब, बहादुर जो कबायली हमारे भाई हैं उनकी कुर्बानियों को भी आज आर्मी चीफ की जानिब से खिराज तहसीन पेश किया गया। जावेद साहब, बिल्कुल, उन्होंने जारी बात है जो मुख्तलिफ कबाइल के माहिदीन वहाँ पर शरीक थे, चूँकि कबायली माहिदीन का एक अहम रोल है पाकिस्तान की फाटा की और जो KP का इलाका है उसकी तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए दुआ भी की गई, जिसमें जो किरदार है कबायली माहिदीन का, कबायली अवाम का, उसको सराहा भी गया आर्मी चीफ की तरफ से। और जो कबायली इजला की तरक्की के लिए जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसको भी जो है वो बताया गया कि क्या क्या मनसूबे जो है वो अवामी तरक्की के लिए जो है वो शुरू किए गए हैं और उसे मुकम्मल करने के लिए क्या प्लानिंग की जा रही है। तो आर्मी चीफ ने ऑन बोर्ड लिया जो माहिदीन थे और जो कबायली अवाम है, वो उनका ये कहना था कि कबायली अवाम जो है हमारा हिस्सा है और यहाँ पर कबायली इजला में वज़ीरिस्तान के इलाकों में, KP के इलाकों में अमन की बहाली के लिए पाक फौज जो है वो अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है और करती रहेगी। तो ये वो चीज़ें हैं जिसमें आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने अपने खिताब में चीज़ें वाज़ेह की। और जो मैं पहले बात कर रहा था, जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है जो अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, उसके मुताबिक भी उन्होंने चीज़ें वाज़ेह की हैं। और जो दहशतगर्द ग्रुप्स हैं उनका ये कहना था कि अगर कोई बातचीत होगी या मुज़ाकरात होगी तो वो सिर्फ अफगान अबूरी हुकूमत के साथ हो सकते हैं और पाकिस्तान दोनों जो हुकूमतें हैं उनके माबैन हो सकते हैं। इसके अलावा किसी जत्थे से, किसी ग्रुप के साथ जो है वो ना तो बातचीत की जा सकती है ना कोई मुज़ाकरात की जा सकते हैं। तो ये वो चीज़ें थी जो आज वाज़ेह की गई। और इसमें जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं अमन के लिए, वहाँ की तरक्की के लिए, उसको भी जो है वो उन शोधा को खराज अकीदत पेश किया गया। जो पुलिस के शोधा हैं उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया। और जो कबायली माहिदीन अपना रोल प्ले कर रहे हैं इलाका के में अमन के लिए, तरक्की के लिए, दोनों भी जो है वो उनके किरदार को खराज तहसीन पेश किया गया।